الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم کہے جا رہے ہیں آپ لوگ دعا نہیں کیجیے گا بس ان کے بعد دعا ہو جائے گی دعا کر کے جائیے بھائی ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله المولانا العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما ظهر الغربول في قوم إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب إلى آخر الحديث. معزز سامعین، وقت تو بہت ہو چکا ہے اور لوگوں کو تقاضے کی بھی ضرورت ہے اور یہ دین کی بات جبھی تک اچھی ہوتی ہے جب بشاشت قلب ہو، خوشی سے سنا جائے تو سننے والے کو بھی مزہ آتا ہے اور سنانے والے کو بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک دل میں داعیہ اور شوق اور جذبہ نہ ہو، کہنا بھی بیکار اور سننا بھی بیکار ہے، سب بیکار ہے. تو اس لیے دل میں یہ داعیہ اور جذبہ لے کر کے بیٹھے کہ انشاءاللہ عملی زندگی کو بنائیں گے، رسمی طور پہ نہیں کہ فلانے مولوی صاحب نے بڑی جاندار تقریر کی، بس شاباشی دے کر کے بات یہی ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد آگے کو کچھ نہیں ہوتا ہے. جیسے بے نمازی پہلے تھے ابھی بے نمازی ہے، جیسے بیمان پہلے تھے ابھی بیمان رہ گئے، جیسے جھوٹے پہلے تھے ابھی جھوٹے رہ گئے. فائدہ کیا ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس لیے جو ہے ہمیں جو ہے دین کی بات سننا ہے عمل کے دائیے سے، عمل کرنے کے ارادے سے. جب تو یہ ہمارا سننا اور سنانا اور جاگنا اور یہ بیٹھنا اور یہ سارا انتظام کرنا اچھا ہے ورنہ بے سود اور بے فائدہ ہے. ایک واقعہ یاد آیا کہ جیسے کہتے ہیں نہیں کہ بعد میں مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا اسلام جو ہمارے اندر دینداری نہیں، ہمارے اندر ایمانداری نہیں، ہمارے اندر اخلاق نہیں، اس معاملے میں ہمارا اسلام بہت پیچھے ہے. ایک صاحب تھے اسلام نام کے، ہمارے آپ کے سیام پور میں بھی ایک اسلام نام کے تھے، ابھی میرے خیال سے 2 مہینہ پہلے انتقال ہوا ان کا. کہیں اس میں بھی تو کوئی اسلام بھائی نہیں ہے. ہاں، تو انہوں نے مولوی صاحب نے کہا کہ ہمارا اسلام بہت پیچھے ہے. وہ تھوڑا سا بیچارہ آگے بڑھ گیا، انہوں نے سوچا مجھے ہی کہہ رہے، تھوڑا سا آگے بڑھا. پھر وہ تقریر کیا اور یہ کہا کہ بھائی ہمارا معاملہ اچھا نہیں، پڑوسی کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں، قرآن سے ہمارا تعلق نہیں، ان معاملوں میں ہمارا اسلام بہت پیچھے ہے. پھر تھوڑا سا وہ آگے بڑھا، پھر جو ہے اسی طرح تقریر کرتے کرتے پھر کہا کہ ہم جو ہے سچائی ہمارے اندر نہیں، امانت ہمارے اندر نہیں، رسول سے ہمیں محبت نہیں، ان معاملے میں ہمارا اسلام بہت پیچھے ہے. تو پھر تھوڑا سا آگے بڑھا بیچارہ، آتے آتے یہاں تک دعا کی اسٹیج کے بالکل قریب آ گیا. پھر مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی اسلام ہمارا پیچھے ہے، تو پیچھے سے آگے ایک تھپڑ دیا کہ کہاں پیچھے ہے، ہم تو آپ ہمیں صاحب تھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ چلا کہ یہاں تھپڑ لگ جائے. اس لیے میں نے پہلے کہا کہ اسلام کوئی اسلام بھائی ہے ہمارا، اس لیے مل کر کے بیٹھ جائیے تو اور اچھی بات ہے.
है, कुरान जैसे मुकद्दस किताब दिया है और आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मुकद्दस नबी और पाकीज़ा नबी दिया है। हम उनके कौल और फेल पर अमल करेंगे तो जब तो हमारी ये जिंदगी है, वरना ये सब कुछ बेकार है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसको मैंने जो है हदीस के एक टुकड़े की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने इरशाद फरमाया, जब जो है हमारे कौम के अंदर जो है हराम और हलाल की तमीज खत्म हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस कौम के दिलों में जो है गैर का रोब डाल देता है। मा ज़हरल गुलूल फी कुलूबिन फी कौमिन इल्ला अलकल्लाहु फी कुलूबिहिम अर्रुअब। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब जो है कौम के अंदर से, मुसलमानों के अंदर से हराम की तमीज खत्म हो जाए, हलाल की तमीज खत्म हो जाए, जायज को जायज नहीं समझे, नाजायज को नाजायज नहीं समझे, जैसा कि आज हमारा माशरा है बिल्कुल जो है बेअन ही ऐसे है जो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें बतलाया था। आज हमारे खास तौर से उन नौजवानों का सिर्फ यह है, उनका नजरिया है कि पैसा ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। पैसा आना चाहिए, चाहे वो हराम तरीके से हो, चाहे जायज तरीके से हो, चाहे किसी का गला काट करके हो, किसी का पेट काट करके हो, किसी की जमीनें दबा करके हो, किसी के ऊपर जुल्म और ज्यादती करके हो, पैसा आना चाहिए। पैसे पे ही दुनिया है, बाकी कुछ नहीं है। पैसे वाला है तो दुनिया है, बाकी कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब ये कैफियत पैदा हो जाए और ये सोच पैदा हो जाए और इसी तरह के लोग पैदा हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने फरमाया, तो फिर जो है गैरों का रोग उसके दिलों में डाल देता है। आज ऐसा है कि नहीं? अपने भाई से लड़ने का नंबर आता है तो क्या करते हैं, जल्दी से फाड़ा बांध करके घर में छुरी वुरी रखा के जल्दी से जाते हैं, तुमसे हम कम हैं। और जब ईमान के खातिर जब जो है लड़ने का नंबर आता है तो क्या करते हैं, चारपाई के नीचे से अल्लाह अकबर के नारे तकबीर की आवाज हमारी जो है चारपाई के नीचे से गेट बंद करके आता है। हम जो है भाई को मारने में बहुत आगे हैं, भाई से दुश्मनी पैदा करने में बहुत आगे है। जो भाई हमारा खूनी भाई है, आज हमारे मुआशरा का ये माहौल है, एक ही घर में रहते हुए एक ही बाप का बेटा पूरा साल हो जाता है, लेकिन जो है उसे तौफीक नहीं होती है कि भाई को जो है हम जो है दुआ सलाम कर ले, खबर खैरियत मालूम कर ले। ये तो हमारे मुआशरे का हाल है। क्या हमें इस्लाम और हमारे नबी ने और जो है कुरान ने यही दर्ज दिया था कि हम अपने भाई से कदे ताल्लुक कर ले? ऐसा नहीं है। इसीलिए जो है आज हमारे दिलों के अंदर गैरों का रोग समा चुका है। तो ये जो है खतरनाक गुनाह है, इसके और इसके खतरनाक जो है क्या कहते हैं सजाएं भी हैं। दूसरी चीज फरमाई, पांच गुनाह ऐसे हैं, इन्हीं को मैं गिना करके मैं अपनी बात को पूरी करता हूं। दूसरा गुनाह फरमाया कि जब जिना आम हो जाए, जब जिना आम हो जाए तो उसमें मौत की कसरत हो जाती है। वला फशद जिना फी कौमिन इल्ला कसुर फीहिमुल मौत। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब जो है जिना आम हो जाए, उरियानियत आम हो जाए, फहाशी आम हो जाए, नंगापन आम हो जाए, बड़े छोटे की तमीज खत्म हो जाए, महरम और गैर महरम की तमीज खत्म हो जाए, और जो है यूं ही उरियानियत पूरी दुनिया में देख लिए नंगा नाच नाचा जा रहा है और अपने जिस्म दिखाने के कंपटीशन हुआ जा रहा है। आज जो है हमारी कौम तो कौम, बल्कि जो है हमारी दूसरी कौम तो कौम है ही, उनका कोई दीन और मजहब नहीं है, लेकिन हमारी माँ बहनें भी जो है आज जो है उरियानियत के नाम पे नंगा नाच रही है और जो है अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है रूह को जो है तकलीफ पहुंचा रही है। तो फरमाया कि जब ऐसी हालत हो जाए, उरियानियत आम हो जाए, नंगापन आम हो जाए, जिना आम हो जाए, चाहे वो आंखों का जिना हो, चाहे वो दिल का जिना हो, चाहे वो कान का जिना हो, हाथ पैर का जिना हो, हम यही समझते हैं कि दो आदमी लड़का लड़की के मिलने का नाम जिना है, बल्कि आंखों का भी जिना होता है, कान का भी जिना होता है, जबान का भी जिना होता है,
इन जिनाओं से जो है हम परहेज नहीं करते। इसीलिए फरमाया आज देखिए कहीं भी जो है पता चला कि रात में सोया सुबह खत्म हो गया, अरनिया गया था वहां से वापस नहीं आ पाया और बिस्तर पे लेटे लेटे खत्म हो गया, कहीं बिस्तर बम ब्लास्ट हुआ और जो हजारों की तादाद में इंसान जो है क्या कहते हैं जहां बहक हो गया, मौत की कसरत हो गई जिना के आम होने की वजह से। दूसरी चीज, तीसरी चीज फरमाया वला नकस फी कौमिन अल-मिक्याल वल मीज़ान। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब जो है नाप तौल में कमी करने लगे तो रिस्क को जो है अल्लाह तबारक व तआला घटा देता है, रिस्क को घटा देता है। चाहे कोई चीज भी हम देने लगे, दे जब ले जब देने में जो है हम जो है क्या कहते हैं हल्का करके दे दें और जब लेने की बारी आए तो झुका करके ले लें, चाहे वो नाप तौल के जरिए से हो, चाहे वो गिनने के जरिए से हो, चाहे वो तौल के जरिए से हो, किसी भी जरिए से होगा। जब इसमें जो है कमी बेशी होगी अल्लाह के नबी ने फरमाया तो उस वक्त क्या होगा, रिस्क में कमी कर दी जाएगी। आज हमारा पूरा मुआशरा रिस्क के मामले को लेकर के तबाह है। कमाते कमाते इंसान पागल है लेकिन रोजी में बरकत ही नहीं है। इसलिए बरकत नहीं है, हम झूठ बोल के रोजी कमाते हैं, हम जो है दूसरे को धोखा दे करके रोजी कमाते हैं, हम दूसरे के साथ जो है फ्रॉड करके रोजी कमाते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हमारी रोजी से जो है हमारी रोजी से बरकत उठा लिया और हम जो है कमाते कमाते परेशान है और जो है उसमें बरकत ही नहीं है, बरकत ही नहीं है। चौथी चीज फरमाया वला हसन मखौन बिगैर हक इल्ला फशद्दम फीहिम। कि जब जो है इंसाफ खत्म हो जाए, हमारे मुआशरे में इंसाफ है, आज जिसको देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस का जो है वो है, जो ताकतवर है वो दूसरे को दबाने पे लगा हुआ है, कमजोर का गला दबाने पे लगा हुआ है। हमारे मुआशरे का ये हाल है कि नहीं है? आज जो है हमारे मुआशरे में हर ताकतवर ये सोचता है कि जो है गरीब का जो है गला दबा दूं, उसकी जमीनें दबा दूं, उसको जो है वैसी दबा दूं और जैसे भी हो सके उसको जो है परेशान कर दूं और जो है उसके साथ नाइंसाफी का ऐसा बाजार गर्म कर देते हैं, कहीं भी जो है इंसाफ का जो है बोलबाला है ही नहीं, बल्कि हर जगह जो है मतलब परस्ती है या जो है खानदान परस्ती है या गुंडा परस्ती है, जिसकी वजह से आज हमारे अंदर जो है क्या हो गया, कत्लो गारतदारी आम हो गई। हर किसी को देखिए, जिसको देखिए आज जो है उन्होंने उसको मार दिया, उन्होंने उसको जो है छुरी मार दिया, उसका मर्डर कर दिया। यही रोजमर्रा की जो है बातें हैं। आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है कौल है और आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल जो है कभी गलत नहीं हो सकता। आज हमारे मुआशरे का ये हाल हो चुका है कि हर बड़ा जो है छोटे पर जुल्म और ज्यादती का पहाड़ तोड़ना चाहता है। इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं। इसलिए जो है हर वक्त डर लगा रहता है कि कब जो है मेरे साथ क्या हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिंदगी दी है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सेहत दिया है, अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ मालो दौलत है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हमारा है, मरने के सब पता चल जाएगा। कब्र में जो है कब्र की जिंदगी बड़ी खतरनाक जिंदगी है। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो शख्स भी जो है जर्रा बराबर भी नेकी करके आएगा उसको उसका सिला मिलेगा और जो शख्स जो जरा बराबर की बुराई करके आएगा उसको उसकी जो है सजा भुगतनी पड़ेगी। कब्र की जिंदगी बड़ी खतरनाक जिंदगी है। रोज कब्र यह जो है ऐलान करती है मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं बेगानगी का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। लेकिन हम जो है रोज जो है अल्लाह की जमीन के ऊपर खाते हैं और यूं ही जो है लंदनाते फिरते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर जो है निगहबान मुतय्यर कर दिया है, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहाहा। कल क़यामत में ये जमीन भी हमारे खिलाफ जो है हुज्जत बन जाएगी और हमारे खिलाफ गवाही देंगी। मेरे पुष्ट पर चल करके अल्लाह तेरी नाफरमानी की थी, उस वक्त हमारा
मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, बाद मरने के ये कुछ नहीं चलने वाला है। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कल क़यामत में इस ज़बान पे ताला लगा दिया जाएगा और जिस्म के 360 जोड़ हमारे खिलाफ गवाही देंगे। आंखें ये गवाही देंगी मैंने जो है गलत चीजें देखी थी, पैर ये गवाही देंगे कि मैंने गलत चला था, और हाथ ये गवाही देगा कि मैं जो है गलत चीज पकड़ा था, कानें ये गवाही देंगे कि मैंने गलत चीजें सुनी थी। सारा का सारा सिस्टम हमारे खिलाफ हो जाएगा। अल्लाह के सामने ऐसी जिल्लत और रुसवाई होगी, उस वक्त जो है इंसान हाय अफसोस कहेगा और अफसोस के मारे जो है अपनी उंगली को चबाना शुरू करेगा, मूंढे तक चबा जाएगा, उसे एहसास तक नहीं होगा, एहसास तक नहीं होगा। मेरे दोस्तों, ये जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। दुनिया मज़रिअतुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की तैयारी के लिए दिया है। यह सिर्फ जो है अपनी मनमानी के लिए नहीं, जब यहाँ रबचाही करेंगे, जब अल्लाह तबारक व तआला हमें मनचाही जिंदगी कब्र में जो जन्नत की शक्ल में हमें देगा। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, वो मोहसिन कायनात, फ़ख्र रसूल, आकाए नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस उम्मत के लिए रोते थे, रात को उठ करके रोते थे, रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। आज वही उम्मत जो है उनकी सुन्नतों के जनाजे निकालने पे लगी हुई है। आज वही उम्मत जो है और अपने घरों से सुन्नतों के जनाजे निकाल करके अपने मुआशरे से निकाल के फेंक दिया। हम सुन्नत पे अमल करने वाले नहीं है, नहीं है। क्या हाल होगा हमारा जब मैदान महशर में हौज़े कौसर में आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रुखे अनवर हमें देख करके फेर लेंगे, तो कोई होगा हमारा पुरसान यार, ये हमें बचा देगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था, ये जिंदगी हमारी अमली जिंदगी होना चाहिए। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। हम जो है क्या कहते हैं, वोटर लिस्ट से हम मुसलमान हो गए। ये मुसलमान का कोई, इस मुसलमानियत की कोई अहमियत ही नहीं है। हम जो है गोश्त खाने वाले मुसलमान है। जब जो है नबी का तकाजा आता है और जो है नमाजों की बारी आती है, अल्लाह के अहकाम की बारी आती है, ना हमें जो है अल्लाह से मोहब्बत है, न कुरान से मोहब्बत है, न नबी से मोहब्बत है, न दीन से मोहब्बत है। सिर्फ हम अपनी मनमानी करना चाहते हैं। इस मनमानी को जो है कर करके जो है कल क़यामत में हम जो है सुरखरू हो जाएंगे। नहीं हो सकते मेरे दोस्तों, नहीं हो सकते। ये जिंदगी पानी का बुलबुला है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये पानी का बुलबुला कब खत्म हो जाए। इसी तरह हमारी जिंदगी कब खत्म हो जाए, कब इस्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और जो है हमें जो है क्या कहते हैं, हमारी रूह को खींच करके और हमें जो है कब्र के गड्ढे में फेंक दिया जाए। उस वक्त हम जो है सोचेंगे और उस वक्त तमन्ना करेंगे, अल्लाह से फरियाद करेंगे, ऐ अल्लाह एक मौका दे दे, मैं जाकर के दुनिया में जो है क्या करूंगा, तेरी इबादत और इताअत करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कोई मौका नहीं, बहुत मौका दिया गया। 40 साल, 60 साल, 70 साल, ये क्या है, मौका ही तो है और कुछ है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, सबसे पहले हमें अपनी अमली जिंदगी बनाना। ये जलसा जो है तामीर मस्जिद के सिलसिले की जलसा है, जो है मस्जिद इसलिए बनाते हैं, मस्जिद की रौनक, असल रौनक टाइल्स और पत्थर और जो है डिजाइन से नहीं है। मस्जिद की असल रौनक जो है नमाजियों से है, नमाजियों से है। चाहे वो टूटी हुई चटाई ही क्यों ना हो, लेकिन नमाजियों से खचाखच मस्जिद भरी हो, यही असल रौनक है, यही असल रौनक है। लेकिन हम जो है मस्जिदें बना करके जो है हम ये सोचते हैं कि बस हमारा काम जो है फ्री हो चुका। नहीं मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, असल मकसद है हमको मस्जिद को आबाद करने वाले हो जाए, मस्जिद से लगने वाले हो जाए, मस्जिद से पंज वक्ता जो है हम जो है उससे लग करके अल्लाह को राजी करने वाले बन जाए। तो जब तो ये हमारी फिक्र और ये सोच और ये जिद्दोजहद और ये मेहनत जो है काबिल तहसीन है और अल्लाह को भी मकबूल है और हमारा भी बेड़ा पार है। वरना मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, सिर्फ रस्मन अगर ये हमारे दिल में ये दाइया पैदा हो गया कि हम भी जो है फलाने गाँव वाले से जो है अच्छी मस्जिद बनाएंगे ताकि हमारी भी शोहरत होगा और हमारे गाँव की भी जो है इज्जत होगी। इस्लामपुर में जो है बड़ी आलीशान मस्जिद बनी हुई है। तो इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नियतों पर है। अगर नियतों में खोट है तो कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला।
ताला सबसे पहले हमें अपनी नीयतों को दुरुस्त करना पड़ेगा और जो है अमली जिंदगी को जो है हम जो है अल्लाह से अपना ताल्लुक को मजबूत करना पड़ेगा। फिर तो हमारा ये सब कुछ जो है फायदेमंद है और सूदमंद है, वरना क्या होगा, सब यूं का यूं ही रह जाएगा, यूं ही का यूं ही रह जाएगा। फिर वही होगा कोलू के बैल से कुछ कम नहीं, जहां से चले थे वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वक्त काफी हो चुका है, तकरीर का तो टाइम नहीं है, इसलिए जो है क्या कहते हैं, हमें जो है अपनी अमली जिंदगी को टटोलना है, अमली जिंदगी को। उलमाए किराम ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, बड़ी अच्छी। अगर आपको उलमाए किराम से हकीकत और मोहब्बत है, उनकी बातों पर आप अमल करें। वो अपने पास से नहीं कह रहे, कुरान और हदीस की बातें बता रहे हैं, तो उसकी बात पर अगर आपने अमल कर लिया तो समझिए कि ये जो है जलसा जो है और ये प्रोग्राम कामयाब हो गया। और अगर अमल नहीं किया तो मेरे दोस्तों फिर वहीं का वहीं रहेगा। इसलिए अपने आप को सब लोग जो है ये इरादा करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला मुसब्बिबुल अस्बाब है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, अपने घर की तामीर करेगा। हमने असबाब इख्तियार किया है और मदद अल्लाह तबारक व तआला करेगा। ये हमारे दिल में यकीन हो कि करने वाली जात अल्लाह ही की है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। हम लाख कोशिशें कर लें, लेकिन अगर अल्लाह न चाहे कुछ नहीं हो सकता। और अल्लाह चाहे हम कोशिशें न भी करें, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला जो है काम करवा लेता है। ये हमारे अंदर यकीन पैदा हो जाए, यकीन कामिल पैदा हो जाए, ये सोच पैदा हो जाए। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। जब अल्लाह को जो है हम रब तस्लीम कर लें, चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे किसी तरह के हालात हो, जो है उस वक्त जो है हम अपने रब को रब तस्लीम करेंगे और अल्लाह की जात पे यकीन करेंगे, तो क्या होगा हमारे साथ, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो रहमत के फरिश्ते हमारे पास उतरेंगे, रहमत के फरिश्ते उतरेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला जो है बड़ी खुशी के मौके हैं और जो है क्या कहते हैं बहुत बेहतरीन समा है। रात का जो है काफी अरसा भी गुजर चुका है, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत और अकीदत है और दीन से लगाव है और अल्लाह उसके रसूल से लगाव है, इसी वजह से आप लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह हमारे कहने को कबूल फरमाए और आपके सुनने को कबूल फरमाए और इसके जरिए से इस मस्जिद के जो है क्या कहते हैं काम को बहुस्न खूबी इख्तिताम पजीर भी फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, अब तक आप हजरात बैठे हुए हैं, इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। आइए आपके खाबिदा कुलूब